बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। My name is Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. And I will share my passion with you people through the course of my lectures. Today we are going to start off our discussion with the subsection of basic concepts of cell biology. Well, I am a big picture guy, and whenever I go to the classrooms even, I have got a tendency to give the big picture to my students. I always like to give the big picture and then I try to build up the finer details into that big picture. It helps me to organize information in the brains of the students, because I personally think that organization of the information specifically for the subject of biology is very important. So here is our today's big picture. First of all, we will discuss cells as basic structural and functional units of living things. सबसे पहले हम सेल्स को लिविंग थिंग्स के बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स के तौर पर डिस्कस करेंगे. एंड सेकेंडली विल डिस्कस अबाउट द बिग पिक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल. एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर की मैं आपको बिग पिक्चर दूंगा एंड आने वाले सब सेक्शंस में हम उस बिग पिक्चर की फर्दर डिटेल्स में जाएंगे. So let's start off our discussion with the cells as basic structural and functional units of living things. So you can see in here, cells are the basic structural units of the living things. So पहली बात यहाँ पे क्या आई है? They are basic structural units. Well students, you know that bacteria are the simplest living things and human beings are most complex living things. सिंपलेस्ट लिविंग थिंग्स से लेके मोस्ट कॉम्प्लेक्स लिविंग थिंग्स तक जितने भी ये ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेल्स से बना है. अगर कोई भी एंटिटी ऐसी है जिसका स्ट्रक्चर सेलुलर नहीं है, जो कि सेल्स या सेल्स की प्रोडक्ट्स से नहीं बना हुआ, तो हम उसको लिविंग लेबल ही नहीं करते. इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल वायरसेस हैं. So we don't label viruses as the living things. Why so? Because viruses के पास cellular structure नहीं है. So पहला point कि cells are the basic structural units of all the living things. And दूसरा point है हमारे पास cells are the basic functional units of all the living things. Cells तमाम living things का functional unit भी हैं. यानी कि बैक्टीरिया से लेके human beings तक ये जितने भी organisms हैं, हर वो सिंगल फंक्शन जो कि वो परफॉर्म करते हैं या परफॉर्म करने की सलाहियत भी रखते हैं, एवरी सिंगल फंक्शन कैन अल्टीमेटली बी एट्रीब्यूटेड टू सेल. Like if I have walked into this room and I'm delivering this lecture to you, even every single function you can observe right now, it can ultimately be attributed to cell. Once a student in the classroom asked a question from me, "Sir, how would you attribute thinking to cells?" Thinking is also a function. It's a function of brain. So अब thinking को किस तरह से cells की तरफ लेके जाएंगे कि how the cells are responsible for thinking. Well, you seen here कि हमारा जो ब्रेन है इसका सबसे एक बड़ा पार्ट है सेरिब्रम. सेरिब्रम इज कंप्राइज्ड ऑफ द न्यूरॉन्स एंड न्यूरॉन्स आर सेल्स. सो सेरिब्रम बेसिकली थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो जो पार्ट जो कि थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है इन टर्न वो भी किस चीज से बना है? सेल से बना है. सो वंस अगेन एवरी सिंगल फंक्शन which any living thing can perform that can ultimately be attributed to cell. So I have got a question for you over here. So you are supposed to choose a single best answer for each of the statements. You can see in here in the right column I have shown few options, like our A option is atom, B option is molecule, C option is cell and D option is tissue. और जो लेफ्ट कॉलम है इसमें डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं एंड हर स्टेटमेंट के लिए मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इस कॉलम में से कोई ना कोई आंसर पिक करें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? सिंपलेस्ट लिविंग यूनिट इज. द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज
And the best response to this question is cell, simplest living unit. कोई भी चीज जिसका स्ट्रक्चर सेलुलर लेवल से बिलो है हम उसको लिविंग लेबल नहीं कर सकते, राइट. सो सेल्स आर द बेसिक सिंपलेस्ट लिविंग यूनिट्स ऑफ लाइफ. जैसे कि हमारे जो सिंपलेस्ट लिविंग थिंग्स हैं बैक्टीरिया, दे आर ऑल्सो एट सेलुलर लेवल. उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स. हाँ, लिविंग थिंग्स में जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, अगर आपसे ये पूछा जाए, अब ये कंडीशन यहाँ पे ये नहीं है कि वो यूनिट खुद से भी लिविंग हो. सो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लिविंग थिंग्स, तो यहाँ पे जो बेस्ट रिस्पॉन्स होगा हमारा, दैट वुड बी एटम. सो नेक्स्ट हम स्लाइड पे चलते हैं. सो यू कैन सीन हियर, यहाँ पे ओवरऑल आपको ये बताया गया है कि लिविंग थिंग्स आर मैटर. बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैटर एटम से मिलकर बना है, तो लिविंग थिंग्स भी एटम से ही मिलकर बनी है. सो यू कैन सीन हियर, सो अल्टीमेटली एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है, कंपोज्ड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स. और एटम्स के कंबाइन होने से बनते हैं मॉलिक्यूल्स. और जो मॉलिक्यूल्स हैं, यू कैन हैव द micromolecules and then you can have the macromolecules. Micromolecules वो molecules हैं जिनका molecular weight कम है. जिनका molecular weight कम है वो है micromolecules. और ऐसे molecules जिनका molecular weight ज़्यादा है, हम उसको कहते हैं they are macromolecules. अब ये जो micromolecules हैं, इसकी बहुत बड़ी examples कौन कौन सी हैं? You can see here oxygen, इसी तरह से water, these are examples of माइक्रोमोलिक्यूल्स. एंड फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं या लिपिड्स हैं या प्रोटीन्स हैं, दे आर एग्जांपल्स ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स. बहरहाल एटम्स के कंबाइन होने से मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो कि इन टर्न माइक्रो या मैक्रो हो सकते हैं. एंड देन फिर मॉलिक्यूल्स के कंबाइन होने से अल्टीमेटली डिफरेंट ऑर्गेनेलीज बनते हैं. फॉर एग्जांपल आप सेल मेम्ब्रेन को भी एक एज एन ऑर्गेनेली कंसीडर कर सकते हैं. सिमिलरली माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, न्यूक्लियस, दे आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनेलीज. इसमें से हम से किसी भी एक ऑर्गेनेली को पिक करते हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स पिक द सेल मेम्ब्रेन. अब सेल मेम्ब्रेन किस चीज से बनी है? सेल मेम्ब्रेन बनी है कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से और प्रोटीन से. एंड कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स क्या है? दीज आर मैक्रो molecules. You can see here that के molecules ultimately ये बनाएंगे organelles and बहुत सारे organelles collectively they would constitute the cell. और cell ही basic structural and functional unit है all the living things का. और यहाँ पे फिर दोबारा मैं आपको रिमाइंड करवाता चलूँ कि कोई भी substance, कोई भी एंटिटी जिसका जो मिनिमम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं है, इससे बिलो है, फॉर एग्जांपल जैसे वायरसेस हैं, वो मोस्टली यू कैन से मॉलिक्यूलर लेवल पे हैं, तो हम उसको लिविंग लेबल नहीं कर सकते. बहरहाल सो सेल्स के कंबाइन होने से बनते हैं टिश्यूज. सो टिश्यूज क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स विद अ कॉमन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, राइट. सो सेल्स के मिलने से टिश्यूज बनते हैं और उसके बाद फिर टिश्यूज के मिलने से कलेक्टिवली यू गेट द ऑर्गन्स एंड देन द ऑर्गन सिस्टम्स. एंड व्हेन द डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स दे वर्क इन हार्मनी विद ईच अदर, तो कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट द ऑर्गेनिज्म, राइट. सो ये बेसिक हायरार्की है. लेकिन यहाँ पे जो एक अहम पॉइंट मैं जनरेट करना चाहता था वो यही था कि कोई भी चीज़ जो कि सेलुलर लेवल पे नहीं है, इससे बिलो है, वो लिविंग नहीं हो सकती. It should be minimum for anything to qualify as a living thing. It should be minimum at the cellular level. या इससे हायर लेवल्स पे कहीं पे भी वो एंटिटी हो सकती है, so as to be called as living. और यहां पे फिर दोबारा देखें कि अगर आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि सिंपलेस्ट लिविंग यूनिट कौन सा है ऑफ लाइफ, तो आपने ये कहना है इट्स सेल. और अगर आपसे ये पूछा जाए कि लिविंग थिंग्स का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो कौन सा है, एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस वुड बी एटम. Now let's move to the next slide. So now we are going to discuss the big picture of structure of a eukaryotic cell. एक यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को अब हम डिटेल से डिस्कस करते हैं. So here is the flow sheet. So structure of a eukaryotic cell, you can see in here. एक eukaryotic cell is comprised of the outer covering, and then you have got the cytoplasm. अब जो outer covering है, in turn ये बनी होती है सेल मेम्ब्रेन से, और समटाइम्स सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है. सारे सेल्स में सेल वॉल का होना जरूरी नहीं है. हाँ, सब सेल्स में सेल
जैसे ही आप अपनी topgrade.bk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिले। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरल पाथवे, इसमें भी एक हमारे पास, अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें। सी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मैं चूज करता हूँ। इसके सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम जो है आपका वो सेव होगा। आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बड़े बड़े नोट्स कर रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद मेम्ब्रेन का होना जरूरी है। सेल वॉल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। और उसके बाद फिर जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म इन टर्न इज कंप्राइज्ड ऑफ अ फ्लूइड पोर्शन विच इज साइटोसोल, और साइटोसोल में फिर इन टर्न है सस्पेंडेड डिफरेंट ऑर्गेनेलिस। अब फर्दर हम इन ऑर्गेनेलिस को आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो इससे पहले कि हम ऑर्गेनेलिस की डिटेल्स में जाएं, मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहूंगा। एंड अगेन हियर वी हैव गॉट फ्यू ऑप्शंस, लाइक ए ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी ऑप्शन है गोल्जी अपैरेटस, सी ऑप्शन लाइसोसोम्स, डी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, ई ऑप्शन पेरोक्सिसोम्स, एफ ऑप्शन ग्लाइकोसिसोम्स एंड जी ऑप्शन वैक्यूल्स। वैसे यहाँ पे आपको ये भी मैं मेंशन करता चलूँ कि रियल एग्जाम में मे बी ये 4 to 5 ऑप्शंस होंगे, लेकिन जस्ट टू इंक्रीज द रेंज ऑफ माई क्वेश्चंस मैं कई दफ़ा ज़्यादा ऑप्शंस प्रेजेंट कर देता हूँ। एंड आई ऑलवेज लाइक टू आस्क क्वेश्चंस बिफोर टीचिंग द स्टफ। रीजन क्या है? आई ऑलवेज लाइक टू क्रिएट कंफ्यूजन्स एंड देन आई ट्राई टू फिक्स दोज कंफ्यूजन्स। सवालों के बगैर आपकी जो लर्निंग है, दिस इज पैसिव लर्निंग। आई नेवर नो कि जो मैं आपको टीच कर रहा हूँ आप इसको परसीव करके रिटेन भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं सवालों के थ्रू आपको टीच करूँगा, ऑफ कोर्स योर लर्निंग वुड बी एक्टिव लर्निंग। एंड आई ऑलवेज लव टू टीच टू माई स्टूडेंट्स थ्रू द टोकन ऑफ क्वेश्चंस। व्हाई सो? बिकॉज आई वॉन्ट देम टू लर्न एक्टिवली। सो आई वॉन्ट यू टू इंटरेक्ट विद मी while I would be asking these questions from you. So हमारे पास पहला क्वेश्चन है, which of the following is a double membrane bound organelle? इनमें से कौन सा डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है? एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज माइटोकॉन्ड्रिया। बाकी लिस्ट में जितने भी हैं दे आर ऑल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, ऑल आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एक्सेप्ट, यानी कि ये सारे के सारे लिवर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं सिवाय किसी एक के। एंड ऑफ कोर्स द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज अगेन द माइटोकॉन्ड्रिया। और उसके बाद फिर थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, नन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली एक्सेप्ट, कि दिए गए ऑर्गेनेलीज में से कोई भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है मां सिवाय। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है जिसमें डबल नेगेटिव स्टेटमेंट है। डबल नेगेटिव स्टेटमेंट है, स्टार्ट पे नन है, एंड पे एक्सेप्ट है, एंड माइनस माइनस मेक्स पॉजिटिव।
राइट. सो जब भी डबल नेगेटिव स्टेटमेंट आए, यू कैन सिंप्लीफाई द क्वेश्चन, यू कैन अनलॉक द क्वेश्चन बाय मेकिंग अ पॉजिटिव स्टेटमेंट. सो सादा लफ्जों में एग्जामिनर ये पूछना चाह रहा है कि कौन सा डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, एंड अगेन द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज डेल्टा माइटोकॉन्ड्रिया. एंड उसके बाद फिर लास्ट क्वेश्चन है कि पिक द ऑड वन आउट, पिक द ऑड वन आउट, राइट. सो इनमें से ऑड कौन सा है? अगेन ऑड इनमें से माइटोकॉन्ड्रिया है. क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली है. बाकी जितने भी यहाँ पे लिस्ट में हैं, दे आर ऑल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज. So here we have got a flow sheet of the organelles. So once again आपको मैं अभी कनेक्ट करता चलूँ with the previous lecture. इसमें अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि यूकेरियोटिक सेल आउटर कवरिंग और साइटोप्लाज्म से बना होता है. आउटर कवरिंग इन टर्न सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल से बनी है, और साइटोप्लाज्म इन टर्न साइटोसोल और फिर उसमें सस्पेंडेड ऑर्गेनेली से बना है. अब हम इन ऑर्गेनेलीज की ही एक फ्लो शीट कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, एंड आई वांट यू टू मेमोराइज दिस फ्लो शीट. व्हाई सो? बिकॉज इट विल हेल्प यू टू आंसर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे पूछे हैं. So here we've got the flow sheet of the organelles. So organelles categorically इन्हें हम 3 sections में divide कर सकते हैं. So 3 इसकी major categories हैं organelles की. एक हमारे पास है double membrane bound organelles. और उसके बाद भी secondly we have got the single membrane bound organelles on board, and thirdly हमारे पास ऐसे organelles भी हैं जिन्हें हम membrane less organelles कहते हैं. So इसमें double membrane bound organelles की लिस्ट में क्या क्या आता है? First of all, you've got the nucleus on board, and secondly the mitochondria, or thirdly plastids. So nucleus, mitochondria and plastids, these are all double membrane bound organelles. और उसके बाद फिर single membrane bound organelles में क्या क्या आता है? You've got the endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, peroxisomes, glyoxysomes and vacuoles. So these are all single membrane bound organelles. Once again, I want you to memorize this list, because it will help you to answer questions on your final exam. And last पे हमारे पास membrane less organelles हैं, जिसमें ribosomes top of the line, and then the centrioles and cytoskeleton, और even अगर आप nucleolus को भी एक separate organelle consider करें, वैसे तो nucleolus या nucleoli they are present inside the nucleus of the eukaryotic cells, लेकिन फिर भी अगर आप न्यूक्लियोलस को भी एज अ सेपरेट ऑर्गेनेली कंसिडर करें तो आप इसको भी मेम्ब्रेन लेस कह सकते हैं. So this was about the organelles, and ये हमारे पास फोटोग्राफ है, कंप्यूटराइज फोटोग्राफ है एक सेल की. तो इसमें आप देख सकते हैं कैटेगोरिकली वी हैव गॉट द आउटर कवरिंग, जो कि एक एनिमल सेल है, जो कि ये इस केस में बनी हुई है किससे? सेल मेम्ब्रेन से. एंड देन वी हैव गॉट द साइटोप्लाज्म. सो ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है. सो आउटर कवरिंग है और साइटोप्लाज्म है, राइट. वही फ्लो शीट रिकॉल करें. और जो साइटोप्लाज्म है, इन टर्न इसमें ये जो फ्लूइड पोर्शन है ये साइटोसोल है, फ्लूइड पोर्शन साइटोसोल है. और उसके बाद फिर इसके अंदर सस्पेंडेड डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं जिन्हें आप देख सकते हैं. इनमें से कुछ ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड हैं, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स. फिर ऐसे ऑर्गेनेलीज भी हैं जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोसोम्स एंड वैक्यूल्स. और फिर लास्ट पे कुछ ऐसे भी हैं जो कि मेम्ब्रेन लेस हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास राइबोसोम्स हैं, सेंट्रियोल्स हैं, साइटोस्केलेटन है. और अगर सेपरेटली कंसिडर करें तो ये जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, ये भी मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली है. सो ये हमने अभी ऑर्गेनेलीज को डिस्कस किया. अब नेक्स्ट सब सेक्शंस में हमारा जो मेजर एरिया ऑफ डिस्कशन है, ऑफ कोर्स तो ये सारे के सारे ऑर्गेनेलीज हैं. एंड अगर आप हर ऑर्गेनेली को सेपरेटली डिफरेंट वे में स्टडी करेंगे तो आप इंफॉर्मेशन को एक अच्छे वे में माइंड में ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे. आई वांट यू टू ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन इन योर ब्रेन, राइट. सो इसके लिए हम सारे के सारे ऑर्गेनेलीज को अगर एक ही स्ट्रक्चर में रहते हुए स्टडी करेंगे, हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा इनके बारे में अंडरस्टैंड करना, इनके बारे में इंफॉर्मेशन को रिटेन करना और इवन इनको आपस में कोरिलेट करना, विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम. सो हम जितने भी हमारे ऑर्गेनेलीज हैं, मेजर ऑर्गेनेलीज हैं जो कि हमारे सिलेबस में मेंशन्ड हैं, हम उन ऑर्गेनेलीज को डिस्कस करेंगे अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हम हर ऑर्गेनेली का जनरलाइज्ड एक इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे.
और उसके बाद फिर अगर रेलेवेंट होगा तो हम उसकी लोकेशन और मे बी साइज, नंबर और शेप वगैरह को भी डिस्कस करेंगे। और थर्ड नंबर पे हम हर ऑर्गेनेली के बारे में ये भी डिस्कस करेंगे कि ये केमिकली किन चीज़ों से मिलकर बना है। और उसके बाद फिर फोर्थली हम उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल वी हैव गॉट द फंक्शंस ऑन बोर्ड। सो आखिर पे हम फंक्शंस पर फोकस करेंगे, हर ऑर्गेनेली के साथ रिलेट करके हम देखेंगे कि कौन सा ऑर्गेनेली कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है सेल के अंदर। यहां पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है दैट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को तो डिटेल में डिस्कस करेंगे ही, लेकिन इससे पहले ये जो स्टफ है लाइक इसका इंट्रोडक्शन, लोकेशन, साइज, शेप, नंबर और केमिकल कंपोजिशन वगैरह, हम इनको इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर और फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए ये स्ट्रॉन्ग प्रीरेक्विजिट्स हैं। सो अगर आप इस बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्कस करेंगे, ऑफ कोर्स इट वुड बिकम इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द स्टफ एंड रिटेन इट लेटर ऑन, right? So thank you very much. This is the end of first subsection. So thanks for the patient listening. And now I want you to go to our website, the topgrade.pk, and I want you to open up the fast revision notes of this lecture, and you can review the highest yield points from those fast revision notes from there. And again, I will see you in the next subsection. Thank you very much. हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक। सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं। कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने topgrade.pk पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया तो उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आपके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चंस का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर हम गौर करें, देखें कि ईकैट के, नम्स के, एनएमडीकैट, एकेयू, एमडीकैट पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चंस देखें यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल। आप किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें, से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने 2 सेक्शन को चूज किया, इसमें से सेम है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केमिकल का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं। इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने पिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा
जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं अपनी तरीके शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएलपीज को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा वो आपको गाइड कर रहे हैं हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमटी कैट का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। जैसे अगर आप एग्जाम आपका एक महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। सो इसमें हमने आपको ये बताया है स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड वो सारे के सारे आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से एक जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज